Good morning, everyone. On behalf of Bharati Vidyapeeth deemed to be university and Center for Distance and Online Education, we welcome you all for this today's expert session, and we welcome heartily Mr. Shiv Prasad Jaju, who is the CEO of Pavan Group, and he will be giving an expert session on time and team. Before starting the session, I would like to give his brief introduction. Jaju sir has pursued his BE Mechanical from Government of Engineering College Aurangabad and is associated with NHK Spring Japan from 1987 to 1996 in production. Present activities include industrial business, particularly manufacturing and exports of standard engineering products for sheetal metal industry, automobile, home appliances and machine manufacturer. He has visited several countries, including Japan, Germany, Austria, Italy, Bangkok, China, and many more on various assignments. He is a recipient of many prizes in debate competition during his engineering education and also has Bharatiya Udyog Ratan Award Delhi in 2016. He is also the recipient of Udyog Bhushan 2014 received from Hatola Gram Sabha, District Usmanabad, and has been given the Industry Center Award for Aurangabad District to Pavan Precision for the year 2014. And he has many more awards on his name. We welcome you, sir. I request Jaju, sir, to take over. Students, please ask your questions at the end of the session and also fill the feedback form. Thank you, sir. Thank you. Shall I start? Yes, sir, please. Yes. Good morning and namaskar. This session is my 36th session, and this is the 5th online, and whatever the session I did in past are offline. Okay, this is actually why we select this session. What is the importance of this session? That is more concern about me. And particularly this session I am going to conduct majorly in the language Hindi and partially in English. तो ये जो विषय है उसकी मेन भूमिका ऐसी है कि जो समय का सबसे छोटा अंग है वो है क्षण. जो क्षण कुछ समय पहले भविष्य का अंग था और कुछ समय के बाद भूतकाल में विलीन होने वाला है, उस बीच में जो वर्तमान काल के क्षण होते हैं वही हमारे होते हैं. भूतकाल का अनुभव और भविष्य काल की योजनाओं के अनुसार वर्तमान काल में काम करने की आवश्यकता होती है. मगर हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से रहते तो वर्तमान काल में है, मगर कई बार भूतकाल में खोए हुए नजर आते हैं या भविष्य काल की चिंता करते हैं. इसलिए ऐसा कहते हैं कि वर्तमान काल के केवल 25% यानी ओनली 25% टाइम वी आर यूटिलाइजिंग फॉर क्रिएशन और फॉर एनीथिंग विच वी वांट टू डू इन आवर लाइफ. एक इसकी पहली भूमिका है कि क्यों समय इंपॉर्टेंट है और इसके साथ हमने संगठन क्यों जोड़ा है. जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपके ध्यान में आ जाएगा. The second aspects of this topic is there are 12 things for which no money is required, and if you attempt those 12 things, nothing is required to earn money. Not only money, पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीजों को हासिल करने के लिए और कुछ भी नहीं लगता. और वो जो 12 चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर आर 12 थिंग्स व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ यू अटेम्प्ट दोस 12 थिंग्स, नथिंग इज रिक्वायर्ड टू अर्न पोजीशन एंड मनी, और पद और प्रतिष्ठा और पैसा. व्हिच आर दोस? गुड कैरेक्टर. Sir, do you want to share your PPT? Open Yes. your PPT. Yes. This is the introductory one. I am going to share it.
This is Okay, last okay, point which I want to share Okay, why I have Yes, selected this sir. topic. Okay, sir. Good character, integrity, honesty, sincerity, trust. These are first 5. Positive thinking, positive attitude, to take knowledge, to meet good people, and to have good friends. These are next 5. And last 2 things are very important: physical fitness and hard work. ये जो 12 चीजें हैं उनके लिए एक भी पैसा नहीं लगता है, और अगर 12 चीजें हम हमारे दैनंदिन जीवन में एज ए पार्ट ऑफ रूटीन करते हैं तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, ये तीनों चीजें हासिल करने के लिए और कुछ नहीं लगता। मगर अगर इफ यू वांट to attain these 12 things: good character, integrity, honesty, sincerity, trust, positive thinking, positive attitude, to take knowledge, to meet good people, to have good friends, physical fitness and hard work, if you attain these 12 things as a part of your routine, there are 2 basic things below this, which are time and team, समय और संगठन। तो आज का हमारा ये विषय है। मैं आपको अभी पीपीटी शेयर करने जा रहा हूं कि व्हाट इज, सो नाउ आवर सब्जेक्ट टुडे इज टाइम एंड टीम। टाइम इज द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड विच इज गिवन इक्वली टू एवरीबडी। समय एक ऐसी चीज है जो भगवान ने सबको एक समान दी है। जात, धर्म, पंथ, भाषा, पैसा तथा भूगोल का भेदभाव समय को बांटते वक्त नहीं किया गया। Time is the only thing which is equally given to everybody in the world. And after nature, time is the first creation of God. सृष्टि के निर्माण के तुरंत बाद भगवान ने समय का निर्माण किया, इसलिए हमारे आरंभ से अंत तक समय हमारे साथ चलता रहता है। हम समय के साथ नहीं चलते हैं, इसलिए हम कई बार पीछे हो जाते हैं। सवेरे होते ही समय रूपी भगवान हमें 24 आवर्स, 1440 मिनट्स एंड 86,400 सेकंड्स दे देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नो आरटीजीएस, नो एनईएफटी, नो फोन पे, नो कैश। मगर जो जो चीजें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, जिसका अहम महत्व है हमारे जीवन में, उसका महत्व हमने नहीं रखा, इसलिए हमें बड़ी चीजों को हासिल करने के लिए तकलीफ होती है। समय एक ऐसी चीज है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है। जैसे कोविड में हमने देखा, हमें ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। ये कोविड में महसूस हुआ कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। हर कोई ऑक्सीमीटर लगा के देखता था हमारा 96 लेवल है क्या, वैसा ही समय का है। 24 आवर्स, 1440 मिनट्स एंड 86,400 सेकंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने 24 घंटों का क्या किया, आपने उसको कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, तो कोई उसको आपको नाम रखने वाला नहीं है, कोई आपको उसके लिए कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है। समय ही उसके लिए पनिशमेंट देने वाला है। मगर आपने इन 24 घंटों का, 1440 मिनट का, 86,400 सेकंड का अच्छी तरह से प्री प्लानिंग, परफेक्ट प्लानिंग से इस्तेमाल किया, तो आपका, आपके परिवार का, समाज का, देश का तथा पूरे मानव जाति का कल्याण हो सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है, शनस्य कनस्य चैव विद्याम अर्थामच्च साधयेत्, शनतो कुत्तो विद्या कनतो कुत्तो धनम। शनस्य कनस्य चैव विद्याम अर्थामच्च साधयेत्, इसका अर्थ है शन शन का उपयोग करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, और कन कन का संचय करने से धन की वृद्धि होती है, आर्थिक विकास होता है। शनस्य कनस्य चैव विद्याम अर्थामच्च साधयेत्, शन तोग कुत्तो विद्या कन तोग कुत्तो धनम। शन को शूद्र समझने से ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सकती, और कन को शूद्र समझने से आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए क्षण का महत्व, समय का महत्व, ये सबसे ऊंचा कंट्रीब्यूटरी हमारे जीवन में है।
इसलिए कवि ने कहा है, शन शन काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। शन शन काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को शूद्र ना समझो, यह जग का निर्माता है। क्षण को शूद्र ना समझो, यह जग का निर्माता है। क्षण क्षण काल इकट्ठा होकर लंबा युग बन जाता है। क्षण को शूद्र ना समझो, यह जग का निर्माता है। आप सोचते होंगे कि क्षण का क्या सोचना है, हमको तो घंटों से ढेरों से समय मिला है, दिन मिले हैं, महीने मिले हैं, मगर एक मिनट का अगर हम दुनिया का एनालिसिस करते हैं तो एक मिनट में दुनिया में क्या होता है। स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है, मैकडोनाल्ड सेल्स 4,500 बर्गर्स, more than 8,500 aircrafts are flying. Bill Gates earned 4,38,000 rupees. Oil consumed across the world 67,500 barrels. Wine consumed across the world 44,500 liters. Amazon dispatches 1,110 orders. Garbage generated around the world is 3,600 tons. Car sold 106. Toyota, out of which the Toyota itself is selling 17 cars a minute, 42 lakh messages on WhatsApp, and 2,000, 1 minute, 2,43,000 photos uploaded on Facebook. Babies born 278 and people dies 120. एक मिनट में दुनिया में इतनी चीजें होती है। बिल गेट्स 4,38,000 रुपए एक मिनट में कमाता है। उसकी एक घंटे की कमाई है 2.6 करोड़ पर आवर। Amazon dispatches 1,110 ऑर्डर्स। अमेजॉन का एक मिनट का बिलिंग वैल्यू है 350 लाख यानी 3.5 करोड़। तो एक मिनट में दुनिया इतनी वाइब्रेंट है, इसलिए एक मिनट का तो महत्व ही है, इसके पीछे क्षण का महत्व है, समय का महत्व है, क्योंकि जितना समय आप लोगों के पास था और है, उतना ही समय इन लोगों के पास था और है। मैं क्या कह रहा हूं, बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि जितना समय आप लोगों के पास था और है और रहेगा भविष्य में, उतना ही समय इन लोगों के पास था और है। 365 days in a year, 24 hours in a day, 60 minutes in an hour and 60 seconds in a minute. आपके पास जितना समय था उतना ही समय इन लोगों के पास है, मगर इन्होंने अपने जीवन का हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर महीना, हर साल कोई ना कोई बड़ा काम करने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जब 8वीं कक्षा में था तब अमिताभ बच्चन का जंजीर पिक्चर आया था। अब मेरे ग्रैंडसन स्कूल में जा रहे हैं, अमिताभ बच्चन आज भी स्क्रीन पर काम करते हुए नजर आते हैं। एक बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पर उन्होंने अपने करियर को स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया। और जो डायलॉग डिलीवरी की उनकी स्किल थी, उसी डायलॉग डिलीवरी की स्किल को उन्होंने केबीसी के चेयर पर बैठकर प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया। इसलिए जिनके पास उम्र के 58 साल में लगभग 90 करोड़ का कर्जा था, उनके पास आज के उम्र के 82वें साल में 3,000 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स है। समय यह कभी खत्म नहीं होता है। उम्र जस्ट लोग कहते हैं कि बस हमारा ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको शायद सभी को याद होगा अब्दुल कलाम जी जब उनकी डेथ हुई तब वो गुवाहाटी में विद्यार्थियों के सामने उनको संबोधित कर रहे थे। इसलिए जितना समय इन लोगों के पास था और है, उतना ही समय आपके पास था और है। एज इज जस्ट ए नंबर।
मैंने जैसे अमिताभ बच्चन का आपको अभी बताया, एज ये नंबर है, एज कोई करियर स्टॉप करने की बात नहीं है। जो विद्यार्थी दशा होती है उसमें सीखना चाहिए, मगर एक बार सीखने के बाद आदमी ने ज्यादा काम करना चाहिए। ये सब वो लोग हैं, ये सब वो इंजीनियर लोग हैं जिन्होंने आपके उनके उम्र के अंतिम क्षण तक काम किया और हर क्षण का क्रिएटिव लाभ उठाया। मैंने अब्दुल कलाम का आपको एग्जांपल दिया, ई श्रीधरन जी है, विश्वेश्वरैया जी है, जिनको उम्र के 95 साल में भारत रत्न पुरस्कार मिला। और वो भारत रत्न पुरस्कार लेने को जब गए तब एक पत्रकार ने उनको पूछा कि विश्वेश्वरैया जी, आपके चिरतारुण्य का रहस्य क्या है? सो विश्वेश्वरैया जी ने कहा, जब भी बुढ़ापा मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, जब भी बुढ़ापा मेरे घर का दरवाजा खटखटाता है, मैं भीतर से बोल देता हूं कि विश्वेश्वरैया घर में नहीं है, तो बुढ़ापा मुझसे हावी हो नहीं सकता। ये भावना पूरे एंटायर स्पैन में जो समय हमें मिला है उसके प्रति हमारी होना चाहिए। नहीं तो कई बार लोग रुक जाते हैं 50 साल में, 55 साल में। विद्यार्थी दशा में भी कई बार लोग कुछ करने से मुकर जाते हैं क्योंकि वो समय का पूरा लाभ उठाते नहीं है। अभी जो 1 मिनट, अब मैंने समय का कुछ बेसिक बैकग्राउंड आपको बताया। अब हमारे दैनंदिन जीवन में समय का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए। हम जितने भी काम हर रोज करते हैं, भले वो विद्यार्थी दशा हो, कोई सर्विस का करियर हो या कोई बिजनेस का करियर हो और कुछ भी हो, उसके काम के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, दूसरा होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा होता है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, और चौथा होता है नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। जो भी काम आप दैनंदिन जीवन में कर रहे हो वो काम इन 4 प्रकार में बढ़ जाता है। नाउ which are those? What are the important and urgent works? इसमें कौन से काम आते हैं? Which are the category which is comes under important and urgent? All sort of emergency work, government tax returns or whatever government applications, if you are filing at last date, it become important and urgent. Unplanned meaningful appointments, कोई बड़े आदमी ने आपको तुरंत बुला लिया और आपके पास उसको मिलने का प्लानिंग नहीं है, तो वो भी काम आपका अर्जेंट हो जाता है। टिकट ट्रैवल बुकिंग एट लास्ट मोमेंट, प्रॉब्लम ड्यू टू द हेल्थ केयरलेसनेस, प्रॉब्लम ड्यू टू द हेल्थ केयरलेसनेस, लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, unplanned working style, customer payment collection, school college admission last date. These are few words which I have written here. There are many more in important and urgent categories. Second is important but not urgent. Future planning of organization or future planning of career. If some students are listening to this session, so future planning is important but not urgent. Self-development, important, not urgent. Relationship building, planning for next generation, new opportunities, exercise for healthy life, new learning and knowledge, recreation and innovation. These are few words are come under the category of important but not urgent. See, there is a difference. Problem due to the health carelessness is important and urgent. हम कुछ छोटे मोटे रीजन के लिए बीमार हो जाते हैं और 1-2 दिन ऐसी हम टालने की कोशिश करते हैं और एकदम हमारी हेल्थ सीरियस हो जाती है, तो इट बिकम प्रॉब्लम ड्यू टू द हेल्थ केयरलेसनेस एंड इट बिकम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. You have to go to the doctor, you get yourself admitted to any hospital. But here, exercise for healthy life, it important but not urgent. तो बहुत बार लोग आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसको टाल देते हैं, तो फिर जो सिचुएशन इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट में आती है वो आ जाती है. द थर्ड कैटेगरी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट. अनवांटेड फॉर्मेलिटीज, मीनिंगलेस मीटिंग्स, work due to interruptions, tradition and celebration, issue due to the colleagues and subordinate, issue due to the friends and relatives, work due to the excess social relationship. All works comes under this category is not important
but urgent. कैसे मैं बाद में बताऊंगा. The last is not important and not urgent. Social media, WhatsApp, Facebook, excess TV watching, video games, YouTube, checking cell phone frequently, political discussion, irrelevant phones, messages and gossip, meaningless shopping, makeup and matching. These are not important, not urgent. मैंने जितने भी इसमें काम लिखे हैं वो मैंने मेरे हिसाब से लिखे हैं. आप इसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं. Not important but urgent and important but not urgent. तो अगर करियर अच्छी तरह से बनाना है, समय का पूरा इस्तेमाल करना है, तो हमें फोकस करना चाहिए इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. उसको अर्जेंट ही समझना चाहिए, मगर आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे. जैसे न्यू लर्निंग एंड नॉलेज इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द लाइफ. आज विद्यार्थी रहो या हमारे जैसे इंडस्ट्री में गए 35-40 साल से काम करने वाले लोग रहो, हमें हर रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है. जैसे ऑनलाइन सेशन है, कोविड के पहले कभी होते नहीं थे, तो जब वो सेशन ऑनलाइन करने का वक्त आया तो हमने सीखा कि कैसे ऑनलाइन प्रोजेक्ट करना चाहिए, पीपीटी कैसा शेयर करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए. जब श्रोता सामने नहीं है तो एक वक्ता के लिए बोलना बड़ा डिफिकल्ट है, मगर वो भी आदत हमने लगाई. सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो ये सभी चीजें जो है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होती है. जैसे एक छोटी सी मैं बात आपको बताता हूं कि हमें 2 हाथ होते हैं. लर्निंग के बारे में बताता हूं, न्यू लर्निंग कैसे होता है. 2 हाथ होते हैं, एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है. बहुत से लोग राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड काम करना शुरू कर जाता है, राइट हैंड सब कुछ काम, जितने भी राइट हैंड से आप हैंडी हो जाते हैं जैसे कहते हैं. लेफ्ट हैंड पे हम केयर नहीं करते तो लेफ्ट हैंड अनएजुकेटेड रहता है, राइट हैंड एजुकेटेड हो जाता है. तो ये जो स्किल दोनों हाथ हमें दिए ऊपर वाले ने, मगर एक हाथ पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसके लिए कभी हमने समय ही नहीं दिया, उसका कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, तो पीछे रह गया है. कुछ लोग लेफ्टी होते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, मगर न्यू लर्निंग एंड न्यू नॉलेज इसकी बहुत जरूरत होती है. रिक्रिएशन, इनोवेशन, अरिस्टोटल ने कहा है वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सलेंस इज देन नॉट एन एक्ट बट हैबिट. हम जो भी करते हैं वो रिपीटेबिलिटी के कारण है, बार बार वही चीज करने से हम एक्सपर्ट हो जाते हैं. तो ये सब अगर आप करते हो, सेल्फ डेवलपमेंट करते हो, आप नॉलेज ज्यादा लेते हो, मैं नॉलेज पे बात नेक्स्ट स्लाइड में आने वाला हूं, तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट इस कैटेगरी देना चाहिए. और इस पे अगर आप ध्यान देते हो तो आपके इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट वाले काम कम हो जाते हैं. इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में कम से कम काम रहे ऐसा प्रयास करना चाहिए. ये काम जल्दी करने चाहिए. ये काम अगर आप जल्दी नहीं करते हो तो बहुत बार आप पे एक प्रकार का बोझ आ जाता है. नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, मैंने इसमें कैटेगरी लिखी है ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेशन. देखिए हमारे देश का क्या हुआ, 10 दिन हम गणेश मनाते हैं, 10 दिन हम नवरात्रा में डांडिया खेलते हैं, 10 दिन हम दिवाली मनाते हैं. कुछ कम पड़ा इसलिए हमने 10 दिन, लगभग 10 दिन का नाताल यानी 31 इंपोर्ट किया. हमारा कोई भी त्योहार एक्सपोर्ट नहीं हुआ, मगर हमने 10 दिन का नाताल इंपोर्ट किया. कितने हो गए टोटल? हो गए 40, और 20 दिन छोटे मोटे सेलिब्रेशन में जाते ही हैं साल में, तो टोटल हो गए 60 यानी 2 मंथ्स. एक बात याद रखिए, 2 आउट ऑफ 12 इज 16% समय हमारा मिनिमम समय 16% ट्रेडिशन, सेलिब्रेशन एंड फॉर्मेलिटीज में जाता है. मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहता और कभी कहता भी नहीं हूं कि आप बंद कर दीजिए. आप कम तो कर सकते हैं, उसको रिड्यूस तो कर सकते हैं, क्योंकि एनालिसिस ये कहता है कि अगर हम हर रोज 1 घंटा कम सोते, 1 घंटा, तो साल में 15 दिन, और अगर 50 साल का एक्टिव लाइफ कंसीडर करते हैं तो लगभग 2 साल हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं. अगर 2 साल अगर हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं तो दुनिया के आज से लेटेस्ट कोई भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो हम उसे सीख सकते हैं, यानी कुछ भी नई चीजें सीख सकते हैं. इश्यू ड्यू टू द एक्सेस सोशल रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव लोग भी समय का बर्बाद करते हैं. At the last category, not important and not urgent,
आप सभी इसमें कितना समय बिता रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, मैंने बताया 42 लाख मैसेज ऑन व्हाट्सएप इन अ मिनट, आउट ऑफ विच मेनी आर द वेस्टेज। बहुत सारे समय बर्बाद उसमें होता है। पॉलिटिकल डिस्कशन अगेन समय बर्बाद करने वाली चीज है। प्रतिशत शादियां लेट होने का एकमात्र कारण है मेकअप और मैचिंग। तो ये सभी 4 कैटेगरी के जो काम है, ये आपके दैनंदिन जीवन में सभी कामों को इन 4 कैटेगरी में बांटना चाहिए। और एक बात याद रखना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको बंद करना है और किसको चालू रखना है। क्योंकि इफ यू वांट टू डू समथिंग न्यू देन यू हैव टू स्टॉप डूइंग समथिंग ओल्ड। आपको कुछ नया सेलिब्रेशन करना है, नया ट्रेडिशन लाना है, तो पुराना कुछ ना कुछ बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास समय बचेगा ही। एंड इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द ओल्ड, if you want to continue with the old, then be careful while accepting new। नए संबंध, नए सेलिब्रेशन को स्वीकार करने के पहले समय की उपलब्धता को देखिए, क्योंकि सब कुछ निर्माण करने वाली टेक्नोलॉजी समय का निर्माण नहीं कर सकती। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ऐसे कामों को शुरू ना करें जिन्हें हम पूरा नहीं कर सकते, तथा गुण विहीन 10 काम करने की तुलना से गुणयुक्त एक काम करने से समय बचता है। अभी हमको क्या करना है? इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट डू इमीडिएटली, जितने जल्दी हो सके ये काम खत्म कर। एक तो पहले ये काम इस कैटेगरी में कम से कम काम रहे इसका प्रयास करना चाहिए, या अगर इसमें कुछ काम आ ही जाते हैं तो उसको जल्दी खत्म करो। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है। प्लान टू डू एज सुन एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। इसमें जितने भी मैंने कहा सेल्फ लर्निंग है, नए नए क्रिएशन है, नए नए इनोवेशंस है, जो भी आपको सीखना है, डोंट वेट, तुरंत उसको एज सुन एज प्लान करो। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, डेलीगेट, किसी को दे सकते हैं क्या, देखो, खुद मत करते बैठ, खुद का काम नहीं है, किसी को देने की कोशिश करो। एंड नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, आइदर पोस्टपोन इट और ट्राई टू एलिमिनेट इट। तो ये 4 प्रकार के एक्शन हमको इस कैटेगरी के कामों पर लेनी चाहिए। मगर हमारा होता क्या है, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट कामों पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट अर्जेंट हमको मजबूरी से करना पड़ते हैं। स्कूल एडमिशन लास्ट डे है और कोई फॉर्म लास्ट दिन में भरना है, भागना पड़ता है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। और 2 नंबर की कैटेगरी पे हम ध्यान नहीं देते हैं। मगर दुनिया में जितने भी सफल और महान व्यक्ति होकर के गए हैं, उन्होंने अपने आप को कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 वाले कामों से दूर रखा, यानी 50-50। वो सिर्फ इंपॉर्टेंट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट वाले कामों पर उन्होंने ध्यान दिया, फोकस किया, इसलिए उनके पास काफी समय उनको मिला और इसलिए एक बड़ा काम करके वो आगे बढ़ते रहे। अब समय के बारे में एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, समय कैसे बचाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि मानव कल्याण के लिए 3 मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने बताए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। अगर आपने किसी एक विशिष्ट विषय का ज्ञान लिया तो आपका कल्याण हो सकता है, कर्म करने से तो आपका कल्याण होता ही होता है। और तीसरा है भक्ति मार्ग। अगर आपको कुछ विषय का ज्ञान लेने नहीं आया या आपको कुछ कर्म भी नहीं करने आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक अल्टरनेटिव रखा, वो था भक्ति मार्ग। हे प्रभु, मैं ज्ञान नहीं ले सका, मैं कर्म भी नहीं कर सका, तेरी चरणों में आ गया हूं, मेरा बेड़ा पार कर देना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग में से कोई भी एक मार्ग का स्वीकार करो तो आपका कल्याण होगा। मगर समय को अगर प्रसन्न करना है तो ये तीनों मार्गों की एक साथ
आवश्यकता होती है, एक साथ जरूरत है। कैसे? बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने का ज्ञान आपके पास नहीं है या आधा अधूरा ज्ञान है, तो आपका समय बर्बाद हो सकता है। आपके पास ज्ञान है मगर आप काम ही करना नहीं चाहते, तो आपका समय आपके हाथ से निकलते जाएगा बहते पानी की तरह। इसलिए कहते हैं ज्ञान ये कर्मशील होना चाहिए और कर्म ये ज्ञान निष्ठ रहना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान हो तो ज्ञान के अनुसार आपने काम किया तो आपका समय बच सकता है। और अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो उसका ज्ञान लेने का आपने प्रयास करना चाहिए। इसीलिए आज के बाद जो भी काम आपको करना हो उस काम करने का पूरा ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से काम करना है ये समझ लीजिए। और काम की गुणवत्ता, काम का मेरिट, काम की क्वालिटी तो तब आती है जब काम करने वाले के पास काम के प्रति एक डेडिकेशन हो, डिवोशन हो, एक भक्ति समान काम करने की भावना हो। दुनिया में जितने भी सफल और महान लोग होकर के गए हैं, उनके पास अपने काम के प्रति पागलपन जैसा भाव देखने को मिलता था। छोटे छोटे काम तो हो जाएंगे मगर बड़े कार्य के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए, बड़ी सफलताओं के लिए भक्त जैसा समर्पित होना अति आवश्यक है। इसलिए आज से आपको जो भी काम करना हो उस काम करने का पूरा ज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। किस प्रकार से काम करना है समझ लीजिए और पूरे डेडिकेशन से, डिवोशन से, भक्ति भाव से प्रतिबद्धित होकर उस काम करने का प्रयास कीजिए। तो आपका काम जल्दी होगा, आपका काम अच्छा होगा, आपको आपका समय बचेगा और नए काम करने के लिए आपको समय मिलेगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान कर्म भक्ति भाव से जिसने भी समय का सम्मान किया है, समय ने उसका सम्मान किया है। और कहते हैं आज वक्त को बर्बाद मत करो, नहीं तो कल वक्त तुम्हें बर्बाद करेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो सोच समझ करके देना। अब ज्ञान कर्म भक्ति अगर आप इकट्ठा करते हैं, यानी कि नॉलेज, वर्क एज पर योर नॉलेज एंड डेडिकेशन डिवोशन, अगर आप एकत्रित करते हो, एक साथ लाते हो, एक प्लेटफॉर्म पे लाते हो और काम करते हो, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा समय मिल सकता है। और समय के अनुसार अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ एक दुनिया के रथी महारथियों में आपको नाम अंकित करना है, कुछ अच्छा काम करना है, या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अगर हमें कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हुए काम करना है तो हमें एक अच्छे संगठन की जरूरत होती है। इसलिए इस सेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है संगठन। हालांकि संगठन में एक एक्चुअली मुझे वीडियो दिखाना है मगर मैं आज नहीं दिखा पाऊंगा। देखिए, टीम जब बनाते हैं तो 4 प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में। ये हमें जज करना है कि लोग कितने प्रकार के होते हैं, किस आदमी के साथ किस प्रकार का काम करना है, क्योंकि हमको तो टीम बनानी है, हमें तो लोग जोड़ने हैं। तो लोगों को नाम रख के तो होने वाला नहीं है। लोगों को अगर साथ जोड़ना है तो लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो 4 प्रकार के लोग इन जनरल समाज में होते हैं। राह देखने वाले होते हैं, राह से हटा देने वाले होते हैं, राह ढूंढने वाले होते हैं, या राह दिखाने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं दे वेट, भाई कोई तो भी आएगा हमें बताएगा ये काम कैसा करना है, उनको मालूम रहता है फिर वो काम नहीं करना चाहते। तो वो राह देखने वाले लोग होते हैं। हमको ये जज चाहिए कि भाई ये आदमी राह देखने वाला है। दूसरे होते हैं राह से हटा देने वाले, उनको काम ही नहीं करने का है। तो वो क्या कोशिश करेंगे कि भाई काम कैसा ना हो। हम टीम लीडर है, हमको तो काम करना है, तो हमें मालूम है ये काम में कुछ ना कुछ
गड़बड़ करने वाला आदमी है तो उससे काम कैसे करवा के। तीसरे होते हैं राह ढूंढने वाले, जो डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि भाई ये आदमी पे हम रिलाय रह सकते हैं, राह ढूंढ लेगा, ये काम कर देगा। चौथे होते राह दिखाने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम कहीं अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, तो दे यूज टू शो अस अ प्रॉपर पाथ। ये इन जनरल 4 प्रकार के लोग होते हैं, मगर एज पर साइंटिफिक एनालिसिस 8 कैटेगरी के लोग होते हैं। कुछ होते हैं थिंकिंग ओरिएंटेड, कुछ होते हैं फीलिंग ओरिएंटेड, कुछ होते हैं एक्शन ओरिएंटेड, कुछ होते हैं रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड, कुछ होते इंट्रोवर्ट, कुछ होते एक्सट्रोवर्ट, कुछ होते डिटेल ओरिएंटेड और कुछ होते बिग पिक्चर ओरिएंटेड। आप जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हो ऑनलाइन, आप इसमें से एक कैटेगरी के आदमी हो। अगर आप थिंकिंग ओरिएंटेड हो या फीलिंग ओरिएंटेड हो, एक्शन ओरिएंटेड हो। अब कुछ लोग होते हैं एक्शन ले लेते, वो रुकते नहीं है, वो ज्यादा सोचते नहीं, एक्शन काम चालू कर दो। कुछ होते हैं फीलिंग, उनको लगता है यार हम ये काम करेंगे तो कैसा होगा, उनके फीलिंग भावनाएं होती है। कुछ थिंकिंग, सोचते रहते हैं कि भाई ये काम कैसा करना चाहिए। कुछ होता है, कुछ लोग जो होते हैं इंट्रोवर्ट होते हैं, 2-3 लोगों के आगे उनकी दुनिया आगे बढ़ती नहीं, बस वो भले उनका काम बना, तो वो मर्यादित सर्कल में काम करने वाले लोग होते हैं। कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों को मिलते ही रहते हैं, लोगों को मिलना एक उनकी एनर्जी का लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। वो लोगों को मिले बगैर उनकी एनर्जी बढ़ती नहीं, इसलिए एक्सट्रोवर्ट। कुछ होते हैं डिटेल, बिल्कुल बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बड़ा पिक्चर खड़ा करते हैं, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर डालेंगे, डरेंगे नहीं। ऐसे प्रकार के लोग, कुछ रिफ्लेक्शन यानी दे वेट कि बात क्या हो रहा है फिर मैं काम करूंगा, रिफ्लेक्शन ओरिएंटेड। तो एक बात याद रखिए, टीम बनाने के पहले आपके टीम में ये 8 कैटेगरी के लोग आपको मिलने ही वाले हैं। यू हैव टू जज कि कौन सा आदमी किस कैटेगरी का है और उससे कैसा काम करके लेना चाहिए। जैसा आपके लीडर, आपको जो लीड कर रहा है वो अगर इंट्रोवर्ट है और आप एक्सट्रोवर्ट हो, तो आपको डिफिकल्ट होगा उसके नीचे काम करने का। अगर सिंस ही इज योर बॉस, ही इज योर लीडर, यू शुड अंडरस्टैंड हिज कैटेगरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंट्रोवर्ट है तो वो 2-3 जने के आगे भागेगा नहीं, और आपको तो 5-25 लोगों को मिले बगैर जमने वाला नहीं है। तो ये कैटेगरी पे आपको एनालिसिस करना चाहिए कि ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। और ये जो लोगों, ये कैटेगरी जो है लोगों की, ये हमारे घर में भी होती है। तो पहला टीम बनाने का रूल है कि अंडरस्टैंड द कैटेगरी ऑफ द पीपल। उसके बाद क्या करना है, मैं अक्सर कहता हूं कि टीम बनाने वाले सबसे बड़े रोल मॉडल है छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने अक्सर एक कोशिश की कि लोग ढूंढे, अच्छे लोगों को ढूंढ के लाए, अच्छे लोग साथ में जोड़े। और उन्होंने अक्सर एक कोशिश की कि लोग ऐसे तो मिलते नहीं है, लोग ढूंढना पड़ता है, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, तब जाके टीम बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो छत्रपति शिवाजी महाराज के करियर का था, वो था लीडरशिप कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम ऐसी नहीं बनती, आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि भाई मैं ये काम करने की जिम्मेदारी ले रहा हूं, फिर लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। लीडरशिप कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी जो लेगा वो लीडर बनेगा और वो एक सक्सेसफुल टीम बनाएगा। ये हमारे घर से भी शुरू हो जाता है, स्कूल में शुरू होता है, कॉलेज में शुरू होता है, ऑर्गेनाइजेशन में शुरू होता है, जो भी जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां शुरू होता है। हम जितनी जिम्मेदारी लेंगे उतने बड़े लीडर हम बनेंगे, जितने बड़े लीडर बनेंगे उतने हमारे पास फॉलोअर बन जाएंगे, जितने हमें फॉलोअर होंगे उतनी बड़ी हमारी टीम होगी। इसलिए कई बार बिजनेस, हम तो बिजनेस करता हूं, मैं खुद तो बिजनेस कर रहा हूं, तो उसमें कहते हैं यू डोंट एस्टैब्लिश बिजनेस, यू एस्टैब्लिश पीपल एंड पीपल विल एस्टैब्लिश योर बिजनेस। सो टीम बनाने की 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल यू हैव, वो बहुत जरूरी है। आप ये सोचेंगे कि मुझे एक ही कैटेगरी के लोग चाहिए, तो ऐसे मिलने वाले नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लीडरशिप कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा अगर आपको टीम बनानी है, और टीम बनाए बगैर आप समय को बचा नहीं सकते।
तो टीम बनाने के 2-3 ट्रिक्स मैं बिफोर आई क्लोज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शतरंज के खेल में अगर प्यादे नहीं हिले तो खेल आगे नहीं बढ़ता। There would be no game of chess if pawns refuse to play. शतरंज के खेल में अगर प्यादे नहीं हिलते हैं तो खेल आगे नहीं बढ़ता, खेल रुक जाता है, खेल रुक जाता है। और प्यादे अगर एक दूसरे के सामने आ जाते, भिड़ जाते हैं, तो वहां भी खेल रुक जाता है। एक उदाहरण ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी टीम में डाउन स्ट्रीम लोगों का भी एक महत्व होता है, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। कई बार हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में नीचे के लोगों को हम महत्व नहीं देते हैं, बट इट इज नॉट करेक्ट। डाउन स्ट्रीम के लोगों का भी उतना ही महत्व है। जैसे शतरंज के खेल में प्यादे नहीं हिलते हैं, तो इस शतरंज के खेल के बारे में एक कवि ने कहा है, प्यादा सीधी चाल चलत, प्यादा सीधी चाल चलत, प्यादा हो तो वजीर, मीर न फर्जी हो सके टेढ़े के तासीर। शतरंज का मीर यानी ऊंट कभी वजीर नहीं बनता, क्योंकि वो टेढ़ा चलते रहता है, और प्यादा जो है सीधी चाल चलता है और एक दिन वजीर बन जाता है। रिस्पेक्ट योर डाउन स्ट्रीम पीपल, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर टीम। केवल पैसों के लिए लोग काम करते हैं, कंसेप्ट गलत है। पीपल, what is important, not only money. You respect them, you teach them, you educate them, you motivate them, then they will work. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर डाउन स्ट्रीम के लोग काम नहीं करेंगे तो आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। आपको आगे बढ़ाना है तो और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, to make a kite to fly higher, you need to pull it towards you. People are like that. You need to pull and not push them. So my point was, if you want to make people to work, you have to pull them, and pulling forces are, मैंने जो पहले आपको 12 चीजें बताई थी, उसमें की 2 चीजें 10 चीजें ये पुलिंग फोर्सेस है। गुड कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रस्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, टू टेक नॉलेज, फिजिकल फिटनेस एंड हार्ड वर्क. If as a leader, if you yourself is not physically fit, nobody will follow you. If you are not hard worker, nobody will follow you. If you are not sincere, nobody will follow you. If you are not positive thinker, or if your attitude is not positive, nobody will follow you. So pulling forces are most important thing to make the team. So to make a kite fly higher, you need to pull towards you and not push. And the last, आपने शायद ये देखा होगा, birds flying in sky with the V formation. I hope that बहुत जनों ने इसको देखा होगा. जिन्होंने कहीं बाहर निसर्ग के साथ नहीं देखा होगा तो व्हाट्सएप पे तो जरूर देखा होगा, मोबाइल पे तो जरूर देखा होगा. What is this? See, birds are flying in the sky in the V formation. इस पे रिसर्च हुआ कि why birds are flying like this. So जो भी चीज हवा में उड़ती है, चाहे वो पंछी हो या एयरक्राफ्ट, उनको हवा के फ्रिक्शन के विरोध में काम करना पड़ता है, हवा के दबाव के विरोध में काम करना पड़ता है. तो ये पर्टिकुलर केस में जब अगला पंछी अपने पंख फड़फड़ाता है और आगे बढ़ता है, तो कुछ क्षण के लिए वहां का हवा का दबाव कम होता है, और वो हवा का दबाव ऊपर आने के पहले ही दूसरा पंछी वहां आ जाता है. वो कुछ हवा का दबाव कम करता है, वो हवा का दबाव ऊपर आने के बाद तीसरा पंछी वहां आ जाता है. ऐसे करते करते हर पंछी को कम हवा के दबाव के विरोध में काम करने का, हर कम दबाव के विरोध में उड़ने का मौका मिलता है. जो आखिरी में सबसे आगे का पंछी है वो थक जाता है, क्योंकि उसको ये फायदा नहीं होता है कम हवा के दबाव के विरोध में उड़ने का.
तो आपने अगर इस चीज को कभी गौर से देखा होगा तो ये पंछी आपस में एक दूसरे में एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये करने के कारण वो स्ट्रेटेजी, वो रिसर्च ये कहता है each bird flaps its wings, which create an additional uplift to the birds that follows. And this strategy, this planning of flying helps each bird to save its 50% of its energy, and each bird covers 71% more distance than one can fly alone. हर पंछी की 50% एनर्जी बचती है और वो अकेला उड़ने से जितना अंतर वो तय कर सकता है उससे 71% ज्यादा वो डिस्टेंस कवर कर सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टीम। सो मैंने टीम कैसी बनाना चाहिए, टीम के क्या फायदे होते हैं ये भी आपको बताया। जब तक आप टीम नहीं बना सकते तब तक आप समय का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, और समय का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप एक आम जिंदगी जी सकते हो, उसके ऊपर का जीवन जीने का लाभ आपको कभी नहीं होगा। दुनिया में जितने भी बड़े और महान लोग होकर के गए हैं उन्होंने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसको दिए तो समय को दी है, टाइम को दी है, समय का इस्तेमाल किया है, एक अच्छा संगठन बनाया है और उसके ऊपर जाकर के उन्होंने काम किया है। अगर ऐसा आपको सभी को भी करना है तो मेरी ये अंतिम स्लाइड है। एक दादी माँ थी और वो अपने पोतों को यानी ग्रैंडसन और उनके फ्रेंड्स, पोतों को और उनको दोस्तों को हर रोज एक कहानी कहती थी। दादी माँ को बहुत सी कहानियां आती थी, मगर एक ही दिन पूरा स्टॉक खत्म हो जाए तो जिस कहानी सुनने के बहाने उसके पोते और उनके ग्रैंडसन उसका छोटा मोटा काम करते थे वो काम नहीं करेंगे। इसलिए दादी माँ हर रोज एक कहानी कहती थी। आप में से बहुत जनों ने शायद दादी माँ की कहानी तो सुनी होगी। ये कहानी थोड़ी हटकर है। एक दिन दादी माँ ने कहा, बच्चों ये दुनिया कब डूबने वाली है मैं जानती हूं। बच्चों ने तुरंत उसको पूछा, दादी माँ कब? एग्जाम के पहले के एग्जाम के बाद। क्योंकि बच्चों को क्या है, मुझे तो मालूम है जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो रैंक होल्डर विद्यार्थियों को भी एग्जाम पोस्टपोन्ड होने का आनंद मिलता था। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ कब? एग्जाम के पहले के एग्जाम के बाद। दादी माँ ने कहा एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट दिन, एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट मंथ, एग्जैक्ट ईयर नहीं बता सकती कि दुनिया कब डूबेगी, मगर एक लैंडमार्क बताती हूं। बच्चों ने पूछा दादी माँ कौन सा लैंडमार्क? तो दादी माँ ने कहा ये दुनिया उस दिन डूब जाएगी जिस दिन इंसान के नजर में थकी हुई, रुकी हुई, बैठी हुई, आलसी तथा सोए वाली चींटी दिखेगी। बच्चे फैल गए, इसके घर में गए, उसके घर में गए, ये गली में गए, वो गली में गए, अड़ोस पड़ोस के परिसर एरिया में जाकर के आए। बच्चे थक गए मगर उन्हें कहीं भी थकी हुई, रुकी हुई, बैठी हुई, आलसी तथा सोए वाली चींटी नहीं दिखी। दादी माँ के पास आए, दादी माँ को कहने लगे, दादी माँ ऐसी चींटी हमने कहीं नहीं देखी है। तो दादी माँ ने कहा, बच्चों सोचो, चींटी जैसा सूक्ष्म शूद्र छोटा सा जीव भी अक्सर कार्यमग्न रहता है, हर क्षण हर पल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, कभी रुकता नहीं है। और जिस इंसान के पास हर प्रकार के शक्तियों का भंडार पड़ा हुआ है वो अपनी शक्तियों को नष्ट करते रहता है, समय को बर्बाद करते रहता है। जो भी लोग ये सेशन को सुन रहे हो उन्होंने चींटी से ये सीख करके हर क्षण हर पल आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए, ज्ञान कर्म भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए। तो बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, आज हमने यहां पर क्षण के महत्व को समझा, 1 मिनट की दुनिया देखी, बड़े लोग और समय का इस्तेमाल कैसा होता है इसका भी अभ्यास किया, एज इज जस्ट ए नंबर की चर्चा की, काम के 4 प्रकार का अभ्यास किया,
ज्ञान, कर्म, भक्ति का समय के साथ संबंध जोड़ा, टीम का अभ्यास करते हुए कितने प्रकार के लोग होते हैं उसका अभ्यास किया, किस प्रकार के लोग जोड़ने चाहिए उसका अभ्यास किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के संगठन कौशल्य का रहस्य जानने की कोशिश की, शतरंज से छोटे लोगों का संगठन में क्या महत्व होता है, टीम में क्या महत्व होता है उसका अभ्यास किया, पतंग से लोगों को जोड़ना सीखा और पंछियों से टीम के क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं उसका वो सीखने का प्रयास किया। और अंत में हमने दादी माँ की कहानी भी सुनी। मैं इस सेशन के ऑनलाइन माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि समय की आप पर कृपा रहे और आपका संगठन कौशल्य निरंतर बढ़ता रहे, जिस कारण आपके जीवन का झंडा परचम पताका हरदम फैलाती रहे, आगे बढ़ती रहे। Unmute yourself and please ask the queries. Hi, ma'am. I just want to confirm, do we have classes on weekdays also? Now see, this is regarding the session. You please ask the queries related to session. Okay. Okay. And you can ask your mentors and coordinators about the sessions, please. Okay. No problem. May I ask something? Yes. Ma'am, this is Sagar Sarungi. I would like to thank Bharati Vidyapeeth and sir for this wonderful session. Sir, can you share the 12 points which are related to team and time management? If you possible, you can share us in a summary format, like honesty, sincerity, and other things. Yes, it's possible. Hello. Hello, Yeah, good afternoon, sir. Can we have snapshot of all these 12 points so that we can take a snap? I will share with the madam afterwards. Hello. Okay, sir. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Hello, good afternoon, sir. Yes. Good afternoon. Myself, Francis Dias. Like, as you said, like, out of 24 hours, we cannot means put each and every minute. So, like, we need to outsource some of the things. So, Yes. can you please elaborate much more onto this? For what? Please repeat your question. Like you said, we have a time of 24 hours. In that 24 Yes. hours, like normally we have a sleeping time of around 6 to 7 Yes, hours because yes. that is There are required some for our compulsory health. things. Yes. Okay. See, So, my point, I understand your question. My point is that there are certain time which you are supposed to give for some compulsory natural things. जैसे स्लीप है या खाना है, ये है, उसमें से जो भी समय आपके पास बचता है उसमें बर्बादी नहीं होनी चाहिए। जो कंपलसरी चीजें है वो तो करनी है, ये नहीं कहना है कि, मगर सोना भी एक लिमिट है, कितना सोना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1 घंटा, अगर आप अगर 8 घंटे सो रहे हो तो आप 7 घंटे सोकर देखिए। आप 4 या 5 घंटे सोकर तो काम नहीं कर सकते, आपको 6-7 घंटे तो मिनिमम सोना ही है, बाकी की एक्टिविटी है। मगर जो चीजें आपका समय बर्बाद करती हैं, अगर आप नॉलेज लेस काम कर रहे हो, या नॉलेज है मगर काम ही नहीं कर रहे हो, या आप फिजिकली फिट नहीं हो, आप काम के प्रति प्रतिबद्धित नहीं हो, सिंसियर नहीं हो, आप एक अच्छे लीडर नहीं हो, तो भी आपका समय बर्बाद होगा। तो मेरा कहने का मतलब है जो नेचुरल टाइम आपका जहां जो देना है वो तो देना ही है, उसमें कोई शंका नहीं है। मगर जो बचे वाला समय है उसको इफेक्टिव अगर यूज करना है, इस्तेमाल करना है, तो कुछ चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इज इट ओके? यस सर, वन मोर क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट। आपने ये भी बोला कि कुछ थिंग्स अपन आउटसोर्स कर सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा आप हाँ कर डिटेल सकते में हैं। जैसे बता अब मैं देखिए, आउटसोर्सिंग अभी विद्यार्थी दशा में तो आउटसोर्सिंग कितना होगा पता नहीं, और जैसे जैसे आप बिजनेस करियर या कोई जॉब में जाओगे आगे, तो कोई थैंकलेस जो काम हम करते हैं वो आप आउटसोर्स कर सकते हैं। उसके लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ सकते हैं जो जिसको काम की जरूरत है और जो आपका काम कर सकता है। तो ऐसे आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, करना चाहिए। हम अभी इंडस्ट्री चलाते हैं, हम अच्छे कंपनी है, तो हम भी आउटसोर्स कर रहे हैं। जो काम हमको नहीं करना है, जो काम हमें स्किल
नहीं है, जो काम अनस्किल्ड है, ऐसे लोगों से करवा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सी मेरे जितने भी बहुत से पॉइंट जो हैं वो यूट्यूब पे भी आपको मिलेंगे, कुछ छोटे छोटे फॉर्मेट में, या इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो समय और संगठन जो विषय है, ये वैसा देखे तो मेरा 2 घंटे का फुल ऑफलाइन सेशन है, और भारतीय विद्यापीठ में मैंने इसके पहले 2 बार ऑफलाइन भी किया है, तो हो सकता है आगे चल के आपके साथ कभी उसका शेयर करने का मौका आया तो करेंगे। So shall we close? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank Thank you, you. sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you for the Thank you. session. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, students, for attending the session.